Hi, church. Hallelujah. Thank you so much. Thank you for your love. Come on. आपके प्यार के Come लिए on. बहुत धन्यवाद. More zeal and more passion for Jesus. Come on. Just close your eyes wherever you are. This is clap for Jesus. और Come on. प्यार. आइए हम यीशु के लिए तालियां बजाएं. Let's clap for Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. जहाँ कहीं भी हैं church, wherever you are, just lift up your voice. Thank you, Jesus. Wherever you are, जहाँ कहीं भी Lord, we हैं, worship you. आप हाथ उठाकर यीशु को You are धन्यवाद दें. worthy. आप योग्य हैं. You are worthy. आप योग्य हैं यीशु. Jesus, you are worthy यीशु आप योग्य हैं हर of बात. every praise, हर स्तुति के, every adoration. हर एक प्रशंसा के. You alone are worthy, God. आप ही योग्य हैं यीशु मसीह. You alone are worthy, Jesus. यीशु मसीह आप ही योग्य हैं. You are the miracle worker. आप हमारे बीच चमत्कार करने वाले हो. You are the living word. आप ही जीवित वचन हो. You are our breakthrough. आप हमारा छुटकारा हो. You are our victory. आप हमारी जय हो यीशु. We worship you, Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं. We lift up the name of Jesus in this place. हम इस स्थान में यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. Thank you for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए Thank you, धन्यवाद. Father, धन्यवाद पिता परमेश्वर for it is your will कि आपकी इच्छा है to give us the kingdom, हमें राज्य देने की. to give us every good and perfect gift. हमें हर भली और सिद्ध बात और तोहफा देने की. We thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं यीशु. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम And the में. church said, और कलीसिया ने कहा आमेन. Amen. Thank you so much for such a warm, loving welcome. You can be seated in your places. Thank you so much. धन्यवाद इतने प्यार से स्वागत करने का. आप सभी बैठ सकते हैं. Yeah, like Pastor Ram said, you all know the title of the sermon. और जैसे पास्टर राम ने कहा, आप सभी जानते हैं इस संदेश का शीर्षक क्या है. But before I go into the message, I just want to say इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, मैं ये बात कहना चाहता हूं that I revere this pulpit. कि मैं इस मंच का आदर और सम्मान करता हूं. I honor the place where I'm standing right now. जहां मैं आज खड़ा हूं, मैं इस जगह को सम्मान देता हूं. I stand here every week मैं यहाँ पर हर हफ्ते खड़ा होता हूँ as an interpreter एक अनुवादक के रूप में or as a worshipper. या आराधक के रूप में. But to come on this side of the table लेकिन टेबल के इस तरफ आने के लिए is a lot of weight of responsibility. ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर. And our pastor Ankit Sajwan, हमारे पासबान अंकित सजवान, he has built this ministry उन्होंने इस सेवकाई को बनाया है with a lot of sacrifices, बहुत ही बलिदान देकर prayers, और प्रार्थनाओं pain, कष्टों में, heartache, मानसिक व्यथा में, untiring investment. और बहुत ही ज़्यादा तरीके से उन्होंने निवेश किया, अथक निवेश किया है. And his commitment to build God's people. और परमेश्वर के लोगों को संवारने में उन्होंने जो प्रतिबद्धता दिखाई है. And I want to acknowledge that, honoring that man of God. और मैं इस बात को मानता हूँ कि परमेश्वर के जन का आदर करना, God has built this pulpit परमेश्वर ने उसको इस मंच को बना दिया है to be a place of empowerment, ताकि ये एक सामर्थ की जगह बने, अधिकारिता की, a place of encouragement, प्रोत्साहन की जगह बने, and a place of excellence. और उत्तमता की जगह बने. Amen? आमीन. Yeah, thank you so much. धन्यवाद आप सभी का. So, yeah, I mean, I try to imitate my pastor. मैं पास्टर अंकित की नकल करने की कोशिश करता हूँ. I sent him a message this morning. और मैंने आज सुबह उन्हें एक संदेश भेजा. I said, costume check. मैंने कहा कपड़े तो ठीक है ना. And then I asked him to pray for me. और मैंने उनसे कहा मेरे लिए प्रार्थना करो. So he prayed for me. और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी. Then I sent a message saying, anointing and grace check. और मैंने फिर एक संदेश भेजा कि अभिषेक और अनुग्रह पर चेक हो गई. Amen. So I stand here under the grace of the man of God. और मैं परमेश्वर के जन के अनुग्रह के स्थान पर खड़ा हूँ, अनुग्रह के साथ खड़ा हूँ. Yeah, come on. So let's just pray before we go into the word. हम प्रार्थना करें इससे पहले कि वचन सुने. Holy Spirit, we thank you पवित्र आत्मा धन्यवाद आपका for the proceeding word that comes to us today. उस कार्य करने वाले वचन का जो आपके मुंह से आता है आज, The word that comes from the Lord. जो प्रभु से आता है आज. Holy Spirit, we thank you पवित्र आत्मा धन्यवाद आपका for revealing the word of the Lord to us today. परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमें देने के लिए आज. Jesus, we give you freedom यीशु मसीह हम आपको पूरी आज़ादी देते हैं to enlighten us कि हमारे अंदर प्रकाश भरे, in every area of our soul.
हमारे प्राणों के हर एक क्षेत्र को Holy प्रकाशित Spirit will give you freedom पवित्र आत्मा हम आपको आजादी देते हैं to do whatever you want. कि आप जो कुछ करना चाहें करें In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन। Yeah, so over the past decade that Pastor Ankit has been teaching and investing in us, पिछले दशक से जब पास्टर अंकित हमें सिखा रहे हैं हमारे जीवन में बो रहे हैं he has given us teachings so that we can live a holistic, victorious life. वो हमें इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि एक संपूर्ण जयवंत जीवन जिए हम You know, in Christ Realities series, और इन क्राइस्ट रियलिटी की जो श्रृंखला थी to know who you are in Christ. कि हम यीशु मसीह में कौन हैं ये जाने Righteousness series, धार्मिकता की शिक्षा to walk boldly in that new identity. Amen. कि हम उस नई पहचान में पूरे हियाव के साथ चलें He's taught us the church series, फिर उन्होंने कलीसिया की श्रृंखला सिखाई so we can find our God-ordained community and fulfill our purpose. ताकि हम परमेश्वर द्वारा निर्धारित उस समाज को ढूंढे और उसमें हम उस लक्ष्य तक पहुंचे Faith series, फिर विश्वास की श्रृंखला so we can fulfill what God has given to us and we can live a lifestyle of faith. और परमेश्वर ने जो दिया है हम उस बात को पूरी कर सकें और विश्वास का जीवन जी सकें Prosperity series, फिर उन्नति की श्रृंखला so that we can live a life of overflow कि हम एक बहुतायत का जीवन जी सकें and continuous supply. और निरंतर परमेश्वर के द्वारा प्रदान करना Healing series, फिर चंगाई की श्रृंखला so that we can be healed कि हम चंगाई पाएं and live in divine health. और हम दिव्य स्वास्थ्य में जिएं Prayer series, प्रार्थना की श्रृंखला so that we can live an intimate life with God. कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता में जिएं And his teachings about the grace of God, the love of God, the cross, the blood, I mean I can go on. और मैं इस बात को बता सकता हूँ और बता सकता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में उसके क्रूस के बारे में उसके लहू के बारे में और बहुत सारी शिक्षाएं हैं ऐसी So he has given us the holistic teachings of the word, तो परमेश्वर के वचन की संपूर्णता में शिक्षा उन्होंने हमारे सामने लाई है so that we can live victorious. ताकि हम जयवंत जीवन जिए And we have received these teachings week after week. और हमने हफ्ते दर हफ्ते इन शिक्षाओं को प्राप्त किया है And we've all been awestruck by the revelations that the man of God carries. और हम अचंभे रह गए हैं किस तरह से परमेश्वर ने उनको वचन का प्रकाशन You दिया know, है I have asked this question to myself. मैंने अपने आप से ये सवाल किया How can one man walk in so much revelation? कि एक व्यक्ति इतने प्रकाशन में किस प्रकार चल सकता How है can one man walk in so much revelation light? कि परमेश्वर के प्रकाशित ज्योति में किस प्रकार से एक मनुष्य चल सकता है Say with me, the entrance of your word मेरे साथ कहें कि परमेश्वर के वचन का प्रवेश brings light. The entrance of your word brings light. मेरे साथ कहें परमेश्वर के वचन का प्रवेश प्रकाश लाता है So Pastor Ankit has taught us the secret of his life. पास्टर अंकित ने अपने जीवन का रहस्य हमारे सामने रखा है Amen. आमीन All right. So church, just a quick one. I just want to tell you there are two kinds of declarations. कलीसिया मैं आपको जल्दी से बताऊं कि दो प्रकार की घोषणाएं होती हैं One is when I say something and you say it back. एक तो ये होती है कि जब मैं कहूं और आप उसको दोहराएं Second is a decree. और दूसरा है ऐलान करना Decree is when whoever stands here under the anointing, कि जो यहाँ पर मंच पर अभिषेक के प्रति खड़ा है they say something वो कुछ बोलते हैं and you receive that word. आप उसको ग्रहण कर लेते हो Among the hundreds of people sitting here, यहाँ पर जो 100 से अधिक लोग बैठे हुए हैं कई सौ लोग बैठे हुए कई हैं. 100 लोग बैठे हुए हैं Among the hundreds of people here, कई 100 लोगों में someone will catch that spoken word उस घोषणा ऐलान किए हुए वचन को कोई पकड़ेगा and go back victorious. और वो जय में वापस जाएगा आमीन Okay? So learn to discern both declarations. तो इस बात को परखना सीखें दोनों प्रकार की घोषणाओं को Did you hear the first testimony of the brother who was sharing how he had an accident and then he got healed and his finger and everything? और आपने भाई की आज गवाही सुनी कि किस तरह से वो गिर गए थे और उनको चोट लगी थी और उनकी उंगली में भी चोट थी You know what he said? The key in his testimony was, जो कुंजी है उनकी गवाही में वो ये है he said, Pastor Ankit said कि पास्टर अंकित ने ऐसा कहा that Jesus told the 10 lepers कि यीशु ने उन 10 कोढ़ियों को बोला to go and show themselves to the priest. कि जाओ और याजकों को अपने आप को दिखाओ Okay? That was the key of his testimony. वो उनके गवाही की कुंजी थी Jesus gave them a word. यीशु ने उन्हें एक वचन दिया They received the word उन्होंने वचन ग्रहण किया and received the miracle. और उन्होंने उस चमत्कार को प्राप्त किया Okay. So what is happening here every week
तो यहाँ पर क्या हो रहा है हर सप्ताह Our pastor has been giving you the word. कि पास्टर अंकित हमें वचन देते हैं, Those of you who find the word, हमें से जो उस वचन को पा लेते हैं to them it will be life. उनके लिए वो जीवन के समान होगा। Amen. आमीन। So I decree, तो मैं इस बात को ऐलान करता हूँ may you receive your miracle today, कि आप आज अपना चमत्कार आज प्राप्त करें, which you have been waiting for years. जो आप इंतजार कर रहे थे सालों साल। May you receive that breakthrough today, आप आज वो छुटकारा पाएं for which you have waited more than a decade. कि जो आप दशकों से इंतजार कर रहे थे। Today is the last day आज वो आखिरी दिन है of your shame आपकी शर्मिंदगी का and your patience, और आपकी दीर्घ क्षमा का, because you receive your miracle today. क्योंकि आप आज आपने अपना चमत्कार पा लिया है। Amen. आमीन। So when you receive a decree, तो जब आप एक ऐलान को प्राप्त करते हैं you say amen. तो आप आमीन कहें, That is going to be my story. That's what you're saying. Amen. और आप जब आमीन करते हैं आप ये कहते हैं कि ये जो ऐलान किया गया था ये वचन मेरी कहानी है। Now the second kind of declarations, और जो दूसरी प्रकार की घोषणा I है, want you to say this after me now. आप मेरे साथ जब मैं कहूँ उसके बाद दोहराएं आप। And we'll do a lot of these today, okay? और हम बहुत सारी घोषणाएं करेंगे आज साथ मिलकर। Say with me. His word brings light in my body. His word brings light in my soul. And his word destroys every work of darkness against me. अब मेरे साथ आप हिंदी में घोषणा करिए। परमेश्वर का वचन मेरे शरीर में प्रकाश लाता है। परमेश्वर का वचन मेरी आत्मा में प्रकाश लाता है। और परमेश्वर का वचन मेरे विरुद्ध अंधकार के सब कामों को नाश करता है। Amen. आमीन। All right. So now, since you understand what we are going to do today, तो अब आप जब समझ गए हैं कि आज हम क्या करने को हैं, let's go into the word. हम वचन में जाते हैं। We'll begin by reading Matthew 13, हम मती उसका 13वीं अध्याय पढ़ेंगे verse 3 onwards. तीसरे आयत से। I will read it and brother will translate with me. So, and he spake many things unto them in parables, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं, saying, Behold, a sower went forth to sow. ऐसा कहते हुए कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, And when he sowed, और बोते समय some seeds fell by the wayside. कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, Then fowls came and devoured them up. और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। There's a version which says, immediately the birds came and ate it up. एक अनुवाद है वो इस तरह से कहता है कि तुरंत पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। Some fell upon stony places, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, where they had not much earth, जहाँ पर उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, and forthwith they sprung up, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उगाए, because they had no deepness of earth. क्योंकि जड़ पकड़ने के लिए ज्यादा भूमि ना थी। When the sun was up, जब सूरज निकला they were scorched, वे जल गए, and because they had no root, और जड़ ना पकड़ने के they कारण withered away. वो सूख गए। And some fell among thorns, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, and the thorns sprung up और झाड़ियां बढ़ गईं, and choked them. और झाड़ियों के बढ़ने के कारण वे दब गए। But others fell into good ground लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, and brought forth fruit, और वो फल लाए, some 100-fold, कोई 100 गुना, some 60-fold, कोई 60 गुना, some 30-fold. और कोई 30 गुना। For those of you और जिसके पास, who say that I have heard this before, जिन्होंने कहा है कि ये तो मैंने पहले सुन रखा है, the word says, who has ears to hear, let him hear. वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले या दोबारा सुन ले। Amen? Amen। He who has ears, let him hear. जो जिसके पास कान है जो सुन सकते हैं। So, every week when pastor comes and teaches the word, और हर बार जब पास्टर अंकित आकर हमें वचन सिखाते हैं, this is what he's doing. वो ये करते हैं, From the word, वो वचन के द्वारा he takes a specific kind of seed, वो एक विशेष प्रकार की बीज निकालते हैं। the fruit that you need in your life जो फल आपको जीवन में आवश्यकता है, is hidden in a specific seed. वो उस विशेष बीज में छुपी हुई है। Amen? Amen। So what Pastor Ankit does is he finds that specific seed, तो पास्टर अंकित क्या करते हैं कि उस विशेष प्रकार की बीज को निकालते हैं, and because of the grace upon his life, और उस अनुग्रह के द्वारा जो उनके जीवन पर है, he makes that seed acceptable before you. वो उस बीज को ग्रहण योग्य करने लायक बना देते हैं।
You know, he comes and he tells you all the benefits of that seed. वो आकर आपको सारी विशेषताएं बताते हैं उस बीज की, And the kind of harvest you will have if you let that seed go into your heart. और जब आप उस बीज को अपने दिल में उतरने दोगे तो जो फसल आएगी. But here's what happens. लेकिन क्या होता है At the end of the message, कि संदेश के अंत में he trusts you with the seed वो आप पर भरोसा करते हैं उस बीज के द्वारा, and prays over it और उसके ऊपर प्रार्थना करते हैं for a harvest कि एक फसल आए, and sends you home. और फिर आपको घर भेजते हैं. Okay. Okay, I have a question. तो मेरा No, एक we'll- सवाल है आपसे. We'll go into the question later. That's fine. I can wait. I can hold myself back. अपने आप को थाम लेता हूँ, Since we सवाल have बाद में another पूछूंगा. 4 hours to go, so we are okay. बस 4 घंटे We should और be हैं. fine. मैं सवाल थाम के रखूंगा, हम ठीक हैं अभी. When he prays जब वो प्रार्थना करते हैं and he says, go and have a harvest. और कहते हैं जाओ और फसल कटनी करो, Some of you हम में से कुछ लोग take that seed उस बीज को लेते हैं, and throw it outside near the road वो सड़क के किनारे उस बीज को फेंक देते हैं. before you go to the green lawn to enjoy the evening. इससे पहले कि उस हरी घास में जाकर शाम की आनंद You उठाएं, throw that seed on the wayside. हम सड़क के किनारे उस बीज को फेंक देते हैं. And the devil comes immediately और शैतान तुरंत आता है, to take that seed away उस बीज को चुरा ले जाता है, so that you won't change your mind later. ताकि आप अपने मन में बदलाव ना लाए बाद में. Okay? Some of you take the seed हमें से कुछ लोग उस बीज को लेते हैं, and you go home with it, हम घर जाते हैं उसके साथ, but during the week you're so occupied. लेकिन हफ्ते में कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं. Okay, do this. हम ऐसे चुटकी बजाएं, Bole, take your name, say, listen Samarth, अपने नाम लेकर कहें सुनो हरि. I'm not talking about being busy with work or with life. मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने जीवन के द्वारा या फिर अपने कामों के द्वारा व्यस्त हो जाते हैं. Okay? I'll come to that later. I'll explain that. But remember, I'm not talking about being busy with work or life. मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने जीवन की बातों को लेकर या काम को लेकर व्यस्त हो जाते हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा. I'll come to this and I'll teach you what I'm मैं saying. इस बात को समझाऊंगा और सिखाऊंगा. You are so occupied that we forget to work to sow the seed. We are so occupied that we forget to sow the seed. हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस बीज को बोना भूल जाते हैं, And eventually, और उसके बाद we never sow that seed in our life. हम उस बीज को बोते ही नहीं हैं, वो ऐसे ही रह जाता है. You know, how many of you remember that video that our media team did after the Righteousness series? आप में से कितने लोगों को वो वीडियो याद है जो हमारी मीडिया टीम ने किया था धार्मिकता की श्रृंखला के बाद? They just caught people off guard और उन्होंने लोगों को अचानक पकड़ लिया था. and they asked, what is righteousness? उन्होंने पूछा कि धार्मिकता क्या है आपके हिसाब से. This is right after they're coming out from the sermon. और ये तुरंत वैसा हुआ था कि यहाँ पर सिखाया गया धार्मिकता के बारे में और पूछा गया. And you know, most people were like, और कई लोगों का दिमाग लॉस हो गया. Okay. Some of you go home with the word, with the seed. लेकिन कुछ लोग बीज लेकर घर जाते हैं, But when life situations come लेकिन जब जीवन की स्थितियां आती हैं and they are contrary जो विपरीत होती हैं, to what you have heard on Sunday, उस बात के विपरीत होती हैं जो हमने रविवार को सुना, you disregard that seed तो उस बीज को अलग कर देते हैं अपने जीवन and you में. let your circumstances rule your life. और जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन पर हावी होने देते हैं, And the seed is choked और वो बीज दब जाता है, and घुट brings जाता no है. fruit. वो बीज घुट जाता है और वो फल नहीं लाता. But then there are some among you लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी हैं, who, when you go home, जब हम घर जाते हैं you take the word that was sown हम उस वचन को ले जाते हैं जो हमारे बीच में बोया गया, and you water it उस पर पानी डालते हैं, पानी छिड़कते हैं and you water it again और फिर से पानी देते हैं, until the harvest, the Jab- small plants, जब तक वो छोटे छोटे अंकुर, छोटे पौधे they start to come, वो आने लगते हैं become big mature plants. और वो सशक्त पेड़ बन जाते हैं. And remember the kind of seed, और आपने बीज का प्रकार जाना, till the time you start seeing that kind of harvest in your life, जिस प्रकार का बीज था उस प्रकार की फसल जब तक आप ना देखें, you keep watering it till then. आप उसको तब तक पानी देते रहते हैं. Amen. Okay. But here's the thing.
लेकिन यहाँ पर ये बात है, We all हम सब switch between these four categories every week. हम सब पूरे हफ्ते में इन चारों प्रकार के बीज में बंटते Every रहते हैं। week. हर हफ्ते We guys switch between these four. हम किसी न किसी प्रकार की ये जो चार बीज हैं इन चारों में इधर उधर होते रहते हैं। Some Sundays you know कुछ रविवार आप जान जाते हैं that I've heard this word, कि मैंने ये वचन तो सुन रखा है, so you throw it outside. तो आप उस बीज को तिरस्कार कर देते हो, बाहर फेंक देते हो। Some Sundays after you go home, कुछ रविवार जब हम घर जाते हैं, and let's say a symptom comes of any sickness or anything, उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि कोई बीमारी की बात आई हमारे शरीर में, and you disregard the word of healing that was taught you. तो जो चंगाई की वचन सिखाई गई थी उसको हम छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। Okay, I decree, तो मैं इस बात का ऐलान करता हूँ let this day कि आज का दिन be the last day in your life कि वो आखिरी दिनों आपके जीवन में when you will disregard the power of the word. कि जब हम परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य का तिरस्कार करेंगे। I decree मैं इस बात का ऐलान that करता the हूँ same word कि वही वचन that created the galaxies जिसने इस भूमंडल को बनाया will transform your life completely वो हमारे जीवनों को पूरी तरह बदल देगा in Jesus' name. यीशु के नाम में। All right, I want you to do another declaration with me now, okay? अब मैं चाहता हूँ आप दोबारा घोषणा करें मेरे संग। Say, I have ears to hear, heart that understands, and mind that comprehends all that God has to say to me. हिंदी में बोलेंगे, मेरे कान हैं जो सुनते हैं, मेरा हृदय है जो समझता है, और मेरा दिमाग जो बूझता है वो सब बातों को जो परमेश्वर को मुझसे कहना है। Amen. Okay, so what's happening, church? I want to make you aware of what is happening right now. तो क्या हो रहा है इस बात का ज्ञान मैं आपको कराना चाहता हूँ That there are people that come here every Sunday, कि यहाँ पर लोग आते हैं हर रविवार, and then there are people who are connected to us online. और ऐसे लोग भी हैं जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, And then there are some people that come every week, like new people that come every week. और कुछ ऐसे भी लोग हैं, नए लोग जो हमारे बीच हर हफ्ते आते हैं। You know what is surprising? लेकिन आश्चर्य करने वाली बात क्या है The people that are watching online कि जो ऑनलाइन देख रहे हैं have been receiving greater testimonies than people that are sitting here week after week. कि जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं वो महान गवाहियां अपने जीवन में देख रहे हैं उसके बदले कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। The people that come for the first time, they get healed as soon as they walk in. और जो पहली बार आते हैं वो तुरंत चंगाई पा लेते हैं आते ही। I mean, I praise God for every testimony. और मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ हर गवाही के लिए। But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ your pastor comes here every week कि जब हमारे पास्टर यहाँ पर आते हैं हर हफ्ते and he brings a proceeding word from the Lord. और जब वो उस कार्य करने वाले वचन को बोलते हैं, All you need in your life आपको अपने जीवन में क्या करना है? is one word. एक वचन, That's all you need. बस आपको एक वचन की आवश्यकता है बस। So my prayer today when I'm coming here, तो मेरी आज प्रार्थना यहाँ पर आकर यही है that whether online or offline, कि चाहे ऑनलाइन दर्शक हो चाहे यहाँ पर बैठे दर्शक हो, you will receive the greatest breakthroughs and miracles in your life in Jesus' name. कि हमारे जीवन में महान चमत्कार और छुटकारे देखेंगे यीशु के नाम में। Okay? Amen. So the first category, now we are going to go into that. तो अब जो पहली श्रेणी है उसमें जाते हैं। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहें, we are going deeper. हम गहराई में उतर रहे हैं, We are going deeper. हम गहराई में उतर रहे हैं। Okay? Ask them, do you have ears to hear? अपने पड़ोसी से पूछें, आपके पास कान है सुनने को? All right, so we are going deeper, church. तो हम गहराई में सीखेंगे आज। The first kind of people is who reject the word. पहले प्रकार के लोग वो हैं जो वचन को या बीज का तिरस्कार मना कर देते हैं। You know, when would you reject a word? कब हम मना करते हैं वचन को? When you don't know that you're in the middle of a spiritual warfare. जब हम इस बात को नहीं जानते कि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के बीच में हैं, And that the word that your pastor has brought for you this week और जो वचन पास्टर आपके बीच लेकर आए हैं is manna from heaven, वो स्वर्गीय मन्ना या स्वर्गीय भोजन के समान है, which will keep you and your family alive, जो आपको और आपके परिवार को जीवित रखेगा। but people despise that word. लेकिन लोग उस वचन को तुच्छ मानते हैं। I pray तो मैं प्रार्थना करता हूँ that you will receive कि आप उसको ग्रहण करोगे, every proceeding word
हर एक कार्य करने वाले वचन को which will keep you alive जो आपको जीवित रखेगा, and will keep your family alive. जो आपके परिवार को जीवित रखेगा, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में आमीन। Amen. Our pastor has said so many times, हमारे पास्टर अंकित ने कई बार बोला है, no one who sits here कोई जो यहाँ बैठता है, will not die before their time. जो यहाँ बैठा हुआ है वो अपने समय से पहले मरेगा नहीं। How many of you have made that preceding word your word? कितने लोगों ने इस कार्य करने वाले वचन को अपना वचन अपने जीवन के लिए बनाया है? I pray so shall be your story in Jesus' name. तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी भी कहानी इस वचन के समान होगी यीशु के नाम में। आमीन। The second thing, दूसरी बात, when you reject the word, जब हम वचन को तुच्छ मानते हैं, when you don't know the man on the stage, जब हम जानते नहीं हैं कि इस मंच पर व्यक्ति जो खड़ा है वो कौन है, and you despise the way they dress, और हम उस बात को तुच्छ मानते हैं कि किस प्रकार के वो कपड़े पहने हुए हैं, you judge them by their age हम न्याय कर देते हैं उनकी उम्र का or the way they look. और किस प्रकार से दिखते हैं। Well, for this house, इस भवन के लिए I am a witness. मैं एक गवाह हूँ। We have a general amongst us. हमारे बीच में एक जनरल है, एक औहदा है जनरल का जो हमारे बीच में है। Amen. We have a general of God among us. परमेश्वर का एक जनरल हमारे बीच में है जो महान एक औहदा मिलता है आर्मी में। When the centurion came to Jesus, जब सूबेदार यीशु के पास आया, he said, just say the word. जब सूबेदार यीशु के पास आया उसने कहा केवल वचन बोल दो आप। You know, I've gone to my pastor मैं अपने पास्टर के पास and गया I've asked, Pastor, what do you see for my life? और मैंने उनसे पूछा है कि पास्टर आप मेरे जीवन के लिए क्या देखते हो। I have made him say things over myself. मैंने उन्हें कहा है कि मेरे जीवन पर वो वचन बोले, कार्य करने वाले And I वचन को, took that word. और मैंने उन वचनों को प्राप्त किया And that's why I'm standing. और इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आमीन। Amen. आमीन। Third reason, तीसरा कारण, when you reject the word. जब हम वचन को मना करते हैं, तुच्छ मानते हैं, When you think you know this word, जब हम ये सोचने लगते हैं कि अरे ये तो सुना हुआ है या मैं जानता हूँ, because you think you heard it before, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये तो मैंने पहले सुना हुआ है, without realizing इस बात को ना जानते हुए that the last time you heard this word कि आखिरी बार जब मैंने ये वचन सुना था and you went home, और जब मैं घर गया, you did not water that seed हमने उस बीज को पानी नहीं दिया था and it brought no fruit और इस कारण उसमें फल ना आया, and you have nothing to show for proof for that word. और जो वचन मैंने बोया था मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने वो वचन अपने जीवन में बोया था, But you say, I've heard this before. लेकिन हम कहते हैं कि अरे ये तो मैंने पहले सुना No, हुआ you've है, not. लेकिन आपने सुना नहीं है। You haven't heard a word until you have proof for it. आपने तब तक ये बात नहीं आप साबित कर सके कि आपने वचन सुना है जब तक आपके पास उस वचन का फल ना हो। You आमीन। think you know. आप शायद ऐसा सोचते हैं, आपकी मानसिकता ऐसी है कि मैंने सुना हुआ है। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहें you have only heard आपने सिर्फ वही सुना है what you have proof for. जिसका सबूत आपके पास है। Amen? आमीन। Amen? आमीन। You've only heard what you can prove you have. आपने सिर्फ वही सुना है जिसका सबूत आपके पास है कि मैंने सुना है। आमीन। कम ऑन। You know, we should be grateful to God. हमें परमेश्वर का बहुत धन्यवादी होना चाहिए। Whenever the Lord brings a proceeding word which we have heard, we think we've heard. और जब भी परमेश्वर एक कार्य करने वाला वचन लाता है जो हम कहते हैं कि हमने सुना है और हम ऐसा सोचते हैं, Because it is in His mercy. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही करुणामयी है। In His mercy, He is bringing that word to you again. अपनी करुणा में परमेश्वर दोबारा उस वचन को लेके आता है जो हमें लगता है कि हमने सुन लिया है, To again give you an opportunity ताकि हम दोबारा वो मौका पाएं to let that word bring fruit in your life. कि वो वचन हमारे जीवन में फल लेकर आए। आमीन। कम ऑन। He who has ears to hear, let him hear. जिसके पास सुनने के कान हो वो सुने। Does God do anything randomly, without thinking, without wisdom? क्या परमेश्वर बिना बुद्धि के बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसे ही कर देता है? So नहीं। when the Lord is repeating a word for you, तो जब परमेश्वर एक वचन को दोबारा आपके सामने दोहरा रहा है, it is because that word will bring fruit in your generations to come. वो ये इसलिए करता है ताकि वो वचन आपके आने वाली पीढ़ियों में भी फल लाए। आमीन।
Amen? Amen. Come on. You know, your children won't have to fight the battles you fought. Come on. आप जानते हो आपके बच्चों को उन युद्ध को उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं पड़ेगा जो आप जूझ रहे हो जिससे आज। You know, you're not fighting the battles your parents have won. आप उन युद्धों को या परिस्थितियों से नहीं जूझ रहे हो क्योंकि आपके माता पिता उनसे जूझ चुके हैं पहले। For some people, हम में से कुछ लोग, their parents worked all their life. कुछ लोगों के माता पिता पूरे जीवन काम करते रहे And with their retirement money, they bought a small house. और अपने रिटायरमेंट के पैसों से उन्होंने एक छोटा सा घर लिया। You did nothing and inherited the house. आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपने उस घर को अपनी वसीयत में पा लिया। The victories you're gaining, जो जय है वो आपके लाभ में है। जय तो आप पा रहे हो, your generations will not have to suffer in them. जो आज जय आप पा रहे हो आपके आने वाली पीढ़ियां उस जय में चलेंगी, उनको सताव में नहीं चलना पड़ेगा। So consider it God's mercy when He sends the proceeding word again. तो इस बात को परमेश्वर की करुणा समझिए जब परमेश्वर अपना कार्य करने वाला वचन दोबारा भेजता है। You know, I see people in church. मैं देखता हूँ कुछ लोगों को कलीसिया में They want a new revelation. वो नया प्रकाशन चाहते हैं So they have a big revelation head, ताकि उनका सर जो है प्रकाशन से भर जाए, but very little proof to show for it. लेकिन इतने प्रकाशन होने के बाद भी उनके पास थोड़ा सा या कुछ सबूत नहीं रहता है दिखाने के लिए। And walking so closely with Pastor Ankit all these years, और पास्टर अंकित के संग संग इतने सालों तक चलने के बाद I think I'm the greatest witness of it. मैं I mean, जानता हूँ obviously besides Pastor Monica and all the other senior leaders. पास्टर मोनिका और बाकी लोगों के अलावा मैं इस बात का बहुत बड़ा गवाह हूँ, Because I'm going out on a ministry trip with this man of God, क्योंकि मैं जाता हूँ सेवकाई के लिए परमेश्वर के जन के साथ, and I'm seeing in the hidden quarters of his life और मैं उनके जीवन के उस रहस्यमयी कोनों में देखता हूँ that he's living what he's preaching. कि वो जो प्रचार करते हैं, जो यहाँ से सिखाते हैं, वही जीते भी हैं। Amen. You know what's the secret behind it? आप जानते हो उसके पीछे रहस्य क्या है? Repetition and application. दोहराना और अनुप्रयोग करना। Amen. You know, this is why God is repeating some proceeding words to you again and again. इसीलिए परमेश्वर बार बार दोहरा रहा है अपने कार्य करने वाले वचन को आपके सामने। You know, when the Israelites were in the wilderness for 40 years, जब इजरायली जंगल में मरुभूमि में 40 साल थे, that journey was only 11 days journey. Can you believe it? वो यात्रा सिर्फ 11 दिन की यात्रा थी। क्या आप मानते हो इस बात को? Can you believe that 11 days journey can turn into 40 years? क्या आप मानते हो इस बात को कि 11 दिन की यात्रा 40 साल में तब्दील हो गई? I mean, how dumb were they? कितने मूर्ख थे वो? How many of you go to these old monuments or these places, heritage places, right? आप में से कितने लोग हेरिटेज प्लेस या पुरानी इमारतों को देखने जाते हैं? And you see on a tree, you would see a heart, and you would see M and S or some random letters inscribed on it, right? और आप जब पुरानी इमारतों पे जाते हैं तो दीवारों पे या पेड़ों पे आप दिल बना हुआ देखते हैं और उस पे 2 अक्षर लिखे होते हैं, M, S या कोई भी अक्षर। So imagine Joshua, तो आप कल्पना करिए यहोशू, young handsome guy, 19-year-old, 20-year-old, 19-20 साल का नौजवान, and the journey is starting in the wilderness. और मरुभूमि में उसकी यात्रा शुरू हो रही है। So him and his girlfriend, they go to this tree in the wilderness. और वो और उसकी गर्लफ्रेंड उस पेड़ पर जाते हैं मरुभूमि में। I mean, this is my version. It's not written in the Bible, okay? So please don't stone me for it if you don't find it in the Bible. ये मेरा अनुवाद है, मेरी समझ है, ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। आप कहीं लिख ना दें कि ये पास्टर सामर्थ ने ऐसा बोला। So yeah, you'll send me a message on Instagram. What verse is that, brother? I won't give you the verse. अब इंस्टाग्राम में मेरे पास ये ना पूछें कि ये वर्स कहाँ लिखा हुआ है कि Okay, वो so- गर्लफ्रेंड के साथ गया था। So Joshua goes to this tree with his girlfriend. Let's call her Nancy or whatever, Daisy or whatever, yeah, whatever. आप कोई भी नाम दे दें उनकी गर्लफ्रेंड का, नैन्सी या डेजी, And लेकिन they- यहोशू गर्लफ्रेंड के साथ गया And they inscribed JD. और उन्होंने उस पर चिन्हित किया दिल लगाकर Okay. J और D। Let's say this is the first year of wilderness. तो मान लीजिए ये पहला साल है मरुभूमि में यात्रा का, And then they get married, they have kids, और उनकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, and they go around the same wilderness, और फिर वो उस मरुभूमि में चक्कर काट रहे and हैं, they come back to that tree. और फिर वो उस पेड़ के पास आए। Like, shouldn't they think, we've been here before, what are we doing here again? तो क्या उनको सोचना नहीं चाहिए कि हम इस पेड़ पे तो पहले आ चुके हैं, हम दोबारा क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर, Right? है ना? After some years, कुछ सालों बाद they're there again. वो फिर से वहां चक्कर काट के आए। This time Joshua's kid's name and his girlfriend's name is written there also.
अब देखते हैं कि यहोशू के बच्चों और बच्चों के गर्लफ्रेंड के नाम वहां पर लिखे हुए हैं उन पेड़ों पे। You know, why was God bringing them back to the same place again and again in the wilderness? क्यों परमेश्वर बार बार उनको उस स्थान पर दोबारा ला रहा था मरुभूमि में? Come on. Because He wanted to pull them out of the wilderness into the promised land. Amen. क्योंकि वो चाहता था कि वो उस मरुभूमि से निकलकर वायदे की जमीन पर आ जाएं। So when the proceeding word is coming to you again, तो जब परमेश्वर का कार्य करने वाला वचन आता है दोबारा, you can have two attitudes. तो आपके दो प्रकार के रवैये हो सकते हैं उसके प्रति। देखो हनी हमारा नाम लिखा है यहाँ पर. कि प्रिय देखो हमारा नाम लिखा है, my name is written there. Or you can say, I Yeah. have been here before. या ये कह सकते हैं कि मैं तो यहाँ pहले आ चुका हूँ। This shows I still not have gotten out of my wilderness. ये दिखाता है कि मैं अभी भी अपने मरुभूमि के स्थान से बाहर नहीं निकला हूँ। Okay, in Christ, यीशु मसीह में you are seated in the highest reality possible. कि हम सबसे ऊंची वास्तविकता में बैठे हैं जो संभव है। It is the journey in your soul हमारे प्राणों में जो यात्रा है where you are going round and round. वो चक्कर काट रही है। Okay? Amen. Come on. I hope the word makes sense to you. मैं आशा करता हूँ कि वचन आपको समझ में आ रहा है I pray the word will make sense to you. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आ जाए। Amen. Yeah, okay. The fourth reason why we reject the word, और चौथा कारण क्यों हम वचन को तिरस्कार करते हैं, तुच्छ मानते हैं। because we have so many teachings on YouTube, Instagram, short reels. We have so much content we can eat. इतना सारा कंटेंट है या इतनी सारी शिक्षाएं हैं YouTube पे, Instagram में, इतने सारे रील्स हैं। And we think और जब हम उसको सुनते हैं हम ये सोचने लगते हैं that we know, कि हम जानते हैं, but we have no proof for it. लेकिन हमारे पास उन शिक्षाओं का कोई फल नहीं है। You know, I understand the reason why many times believers do this. मैं समझता हूँ कई बार विश्वासी जन ऐसा क्यों करते Because हैं, they are so hungry for the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के लिए इतने भूखे हैं, They want to know the Lord. वो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, They go to every possible teaching they can. वो हर प्रकार की शिक्षा के पास चले जाते हैं परमेश्वर को जानने के They'll लिए। watch every YouTube video they can. वो हर एक YouTube वीडियो देखते हैं जो वो सुन सकते हैं, They'll follow every man of God on Instagram possible. और वो Instagram में हर परमेश्वर के जन को फॉलो करते हैं, They like, comment, share every reel, every post, everything that any man of God posts. और कोई भी परमेश्वर का जन कुछ भी पोस्ट कर दे वो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देते हैं, And then they think they know. और फिर वो ये समझते हैं कि वो जानते हैं। Do they have proof to show is my question. क्या उनके पास सबूत है कि जो उन्होंने सुना उसका फल आया है कि नहीं? I pray तो मैं प्रार्थना करता हूँ that the word you have heard so far कि जो वचन आपने अब तक सुना है will bring fruit in your life in Jesus' name. कि वो वचन फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। Okay, I want you to say this with me. God sends me His proceeding word आप through the shepherd that He has appointed over me, whom God has anointed to watch over me. Me and my generations are preserved because of the proceeding word that I receive every week. Me and my generations shall live victorious as we feast on the heavenly bread that God gives to us every week through our pastor. हम हिंदी में घोषणा करें, परमेश्वर मुझे अपना कार्य करने वाला शब्द भेजता है अपने चरवाहे के द्वारा जो उसने मुझ पर नियुक्त किया है, जिसे परमेश्वर ने मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए अभिषेक किया है। मैं और मेरी पीढ़ियां सुरक्षित हैं उस कार्य करने वाले वचन के कारण जो मैं हर हफ्ते ग्रहण करता हूं। मैं और मेरी पीढ़ियां एक जयवंत जीवन जिएंगी जैसे हम उस स्वर्गीय रोटी को खाते हैं जो हमें हर सप्ताह परमेश्वर हमारे पास्टर के द्वारा देता है। Amen. 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 We'll go to the second category now. अब हम दूसरी श्रेणी में या दूसरे प्रकार में जाते हैं।
where our heart is already occupied. कि हमारा दिल तो पहले से ही भरा हुआ है, So we never sow the word. तो हम कभी उस बीज को बोते ही नहीं हैं। So if I ask you, तो अगर मैं आपसे पूछूं what are the two important things कि हमारे दो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं for a good harvest? एक अच्छी फसल के लिए? See, one can be good soil, पहली तो अच्छी मिट्टी या अच्छी भूमि हो सकती है, second good seed. दूसरी अच्छी बीज। Amen? आमीन। If I have good soil अगर मेरे मिट्टी अच्छी है या भूमि and I अच्छी have है good seed, और मेरे पास बीज भी अच्छा है, can I have a good harvest? तो क्या मेरा फसल अच्छा हो सकता है? हाँ। Amen? आमीन। Okay, Romans 5:5, we won't go there, but Romans 5:5 says, God has spread His love into our hearts. रोमियो 5 उसका 5 कहता है कि परमेश्वर ने अपना प्यार हमारे दिलों में न्यौछावर कर दिया है। So godly fertilizer तो परमेश्वर का फर्टिलाइजर, has come into our soil. परमेश्वर का खाद हमारी हृदय की भूमि में आ गया है। You already have a good heart. हमारा दिल तो पहले से ही अच्छा है। दिल तो अच्छा है जी. Amen? You already have a good heart हमारा दिल बहुत अच्छा है because the love of God is now in your heart. क्योंकि परमेश्वर का प्यार हमारे दिल के अंदर है। Okay, so that's first requirement. Check. और ये पहली बात है जो जरूरी है, चेक, हाँ कि नहीं। Second requirement, we need a good seed. दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि बीज अच्छा होना चाहिए। So, what is the seed that we have? तो हमारे पास बीज क्या है? We have the incorruptible seed of the word. अविनाशी परमेश्वर का वचन या अविनाशी वचन जो परमेश्वर क्या है। We have a seed हमारे पास जो बीज है that gives you guarantee वो इस बात की गारंटी देता है that it will not return void. वो कभी वापस खाली ना आएगा। Amen. Okay. So my question, तो मेरा सवाल ये है आपसे if I have good soil कि अगर मेरी भूमि अच्छी है and I have good seed, और बीज भी अच्छा है, तो दिक्कत क्या है? then what is the problem? Right? है ना? Now what the third element is, लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात, let's say a farmer came here, a farmer. एक किसान यहाँ पर आया He got to know Pastor Ankit is a man of God. और वो इस बात को जाना कि परमेश्वर पास्टर अंकित जो है परमेश्वर का जन है, So he brought some seeds और वो कुछ बीज लेके आए and he's already bought a very good land. और उस किसान ने बहुत अच्छी भूमि पहले से ही ले रखी है, उपजाऊ भूमि। He came, Pastor Ankit prayed over the seed, और वो आया, पास्टर अंकित ने उन बीज पर प्रार्थना किया said go in peace, और कहा कि शांति में जाओ, you will have a great harvest. तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। Now he goes back, वो जाता है, but लेकिन after he puts the seed, जब वो उस बीज को बो देता है या उस भूमि में फैला देता he है, never puts water on it. उसके ऊपर पानी नहीं छिड़कता। Okay, so he's sown the seed, उसने बीज तो बो दिया जमीन में, but he's never put water on it. लेकिन पानी नहीं छिड़का या पानी नहीं डाला। Will he have a harvest? क्या उसकी फसल आएगी? नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? Why won't it come? Okay, so we understand there's a third element involved. तो हम इस बात को समझते हैं कि अच्छी उपजाऊ भूमि और अच्छी बीज के अलावा एक तीसरी महत्वपूर्ण बात आवश्यक है। Say that's where I come into the picture. कहें कि यहाँ पर मेरा कार्यरत होना जरूरी है। मैं तस्वीर में आता हूँ. मैं तस्वीर में आता हूँ। Amen. That's where I come into the picture. इसलिए मैं तस्वीर में आता हूँ, मैं सामने आता हूँ। Okay, so remember I said when you're already occupied when you go back home. तो मैंने याद करिए, मैंने कहा कि हम व्यस्त हो जाते हैं जब हम घर जाते हैं तो। And I said it's not about your work routine. और मैंने ये नहीं कहा था कि ये हमारे जीवन के कार्य जो हैं उसको लेकर हम व्यस्त हो जाते, वो नहीं है। All those who are sleeping say hallelujah. जो कोई सो रहा है कहे हालेलुया। It's okay. All right. I forgive you. Hallelujah. हालेलुया। You have permission to sleep. If anybody is sleeping, they slept in Paul's message. I'm not offended. I understand if you have a very heavy work routine. If you haven't slept last night, I understand. But I'll also ask your neighbor to pinch you when you sleep.
और मैं समझता हूँ प्रेरित पौलुस का संदेश सुनकर भी लोग सो जाते थे, तो आप में से कई लोग शायद रात की शिफ्ट करके यहाँ आए होंगे, नींद आ रही होगी, लेकिन मैं आपके पड़ोसी से अनुरोध करूँगा कि आपको एक चुटकी मार दें ताकि आप जग जाएं। Okay, so when I said busy, जब मैंने कहा व्यस्त, then I'm not talking about your work routine. तो मैंने ये नहीं कहा कि हमारे जीवन के जो कार्य हैं उसको लेकर व्यस्त होना। I'm talking about your meditation. मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो हम मन में बार बार सोचते रहते हैं। I'm talking about your thought life. हमारे जो सोच विचार का जीवन है उसके बारे में कह I'm रहा हूँ, talking about your internal world. और हमारे जो अंदरूनी जीवन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। Where did you sow the seed? हमने बीज कहाँ बोया? हमारे दिल में। We didn't sow it in a pot in our house, right? हमने घर के गमले में तो नहीं बोया। So the pot doesn't need our physical time. तो जो गमला है वो हमारे शारीरिक समय को उसकी आवश्यकता नहीं है। Your spirit man is seated outside of physical time. जो हमारा आत्मिक मनुष्य है वो हमारे शारीरिक समय से बाहर बैठा हुआ है। You can be extremely occupied हम बहुत व्यस्त रह सकते हैं with work or with whatever makes you busy. चाहे वो आपके काम हो, चाहे घर के काम हो, कुछ भी आपको व्यस्त रखते हो। But you can be heavily meditated on the word. लेकिन हम पूरी तरह से वचन को मनन करते रह सकते हैं। You can be working 20 hours a day, हम शायद 20 घंटे काम करते हो दिन में 120 hours a week, और 120 घंटे हफ्ते में, but you can be heavily meditated on the word. लेकिन हम पूरी तरह वचन में डूबे रह सकते हैं। Or you can be complete vela या फिर हम पूरी तरह खाली बैठे हो, we shall be completely free, workless, and have zero meditation of the word. और जॉबलेस होने के बाद भी हम वचन पर मनन ना करें। Say ऐसा it's भी हो not सकता है। about my busyness. कहें ये मेरे व्यस्त रहने की बात नहीं है। So I have another question for you. मेरे पास आपसे एक और सवाल है। Let's say ऐसा सोचिए this is the good soil कि ये एक उपजाऊ भूमि है and these are the good seeds, और ये अच्छी बीज हैं, but I put some stones here और मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ पत्थर रख दिए and then I put the seed on top. और मैंने उन बीज को उन पत्थरों के ऊपर डाल दिया। Will there be any harvest? क्या कोई फसल आएगी फिर? Why? क्यों? Yeah, shaf. आने भाषा। Yes, no root. Okay, so the thing is, तो वो जड़ नहीं have पकड़ेगी। you heard Pastor Ankit say our heart has limited capacity? आपने पास्टर अंकित को कई बार ये सुनते हुए कहा है कि हमारे हृदय में थोड़ी सी जगह है, लिमिटेड, सीमित जगह है। There is limited space. सीमित जगह है। We can either put the stones there या तो हम उस पर पत्थर रख दें, or we can put the seed there. या पत्थर हटाकर वहां बीज बो दें। You decide. आपको तय करना है। Nobody's going to decide for you. आपके लिए कोई तय नहीं करेगा इस बात को। Come on. But the thing is, लेकिन बात यह है you can place either of them at the same time. कि आप एक ही समय में या तो पत्थर रख दें या फिर बीज बोएं। Amen? आमीन। So then what are these stones? अब ये पत्थर क्या दर्शाता है? The first thing, पहली बात, offenses and bitterness. दोष और कड़वाहट। I have heard this teaching before, brother. मैंने तो ये सुन लिया है इसके I have बारे में। repeated the chapter 11 of the book of faith, chapter 14 of book of faith, and I have heard the 11th teaching in the series of faith. और मैंने जो है 14वां चैप्टर बुक ऑफ फेथ का, विश्वास की किताब का बार बार पढ़ लिया है, और ऑफेंस का जो 10वीं या 11वीं शिक्षा है विश्वास की श्रृंखला में, उसको बार बार सुन लिया है। I have news for you. लेकिन मेरे पास आपके लिए खबर है, You still don't have proof to show for it. आपके पास अभी भी फल नहीं है इस बात को दिखाने का। That's why you keep getting offended at little small things. इसलिए आप बार बार अभी भी दोष या कड़वाहट में पड़ जाते हो। Petty and meaningless things. तुच्छ बातों पर, छोटी बिल्कुल बेकार बातों पर। उसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, He didn't say praise the Lord to me. उसने मेरे समोसे को गर्म नहीं किया, He didn't heat my samosas. you know, we keep getting offended still. हम इस बात के खेद में दोबारा पढ़ते रहते हैं। JD. याद करें उस पेड़ पर दिल के अंदर जे और डी। Come on. So good.
Man, I love the spirit that is on Pastor Ankit. I just love the spirit that is on Pastor Ankit. मैं बहुत प्यार करता हूँ उस आत्मा से जो परमेश्वर ने Such a freedom पास्टर in that के ऊपर spirit, दी है। man. Oof. कितनी आज़ादी है उस आत्मा में। I so love a man of God. मैं उससे एकदम अद्भुत रूप से उसको देखता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ पास्टर अंकित से। I love him so much. Okay, so अगर आपने मैं इंटरप्रेटर पे वापस चले जाता हूँ। if you would have already received the teaching on offense, अगर आपने सच में दोष को लेकर जो शिक्षा दी गई थी वो आपने ग्रहण किया है, which our senior pastor taught us, जो हमारे सीनियर पास्टर ने हमें सिखाया, then you would have proof to show for it. तो आपके पास उसका फल होगा दिखाने के लिए। You would not be offended with your सासू माँ आप अपने सासू माँ से दोष में या खेद में नहीं or चलोगे, with your बहुरानी या अपनी डॉटर इन लॉ से, or with your boss when he didn't promote you but promoted your neighbor. या अपने मालिक से जिसने आपको नहीं आपके पड़ोसी को प्रमोशन दे दी। Amen. Amen. So God has brought you back to this place तो परमेश्वर वापस आपको इस स्थान पर लेकर आया है so you can have fruit, harvest. कि आप फसल देखें, फल लेकर आए अपने जीवन Okay, में। the second reason, दूसरा कारण because of a sinful lifestyle. हमारे एक पापमयी जीवन के कारण। Let's read Matthew 24:12. हम मत्ती उसका 24 और 12 पढ़ेंगे। And because iniquity shall abound, अधर्म के बढ़ने से the love of many shall wax cold. बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। So, godly fertilizer in your heart उपजाऊ जमीन या जो खाद है हमारे दिल में, is frozen. जो खाद है वो ठंडी पड़ी हुई है। Let it go, let it go. How many friends? तो ये गीत गाएं, जाने दे So, जाने दे। the godly fertilizer in your heart is frozen. तो परमेश्वर की जो खाद है वो ठंडी पड़ी हुई है। Will frozen soil bring fruit? क्या वो ठंडी जमीन फल लाएगी? Okay. When we live a lifestyle of sin, तो जब हम पाप की जीवन शैली जीते हैं, God does not take back His love from us. तो परमेश्वर हमसे अपना प्रेम वापस नहीं ले लेता, It just becomes frozen. वो सिर्फ ठंडा पड़ जाता है। Amen. I'll give you a minute to eat that. थोड़े क्षण में आप उसको ग्रहण कर लीजिए। And when it's frozen, there's no fruit. और जब जमीन ठंडी पड़ी हुई है तो फल नहीं आती। See, God has made you free from sin nature. परमेश्वर ने आपको पाप के स्वभाव से आजाद कर दिया है। If you don't understand what I'm talking about, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूँ, watch the In Christ reality series. तो इन क्राइस्ट रियलिटी की जो श्रृंखला है YouTube पर वो देखें जरूर। Okay? But still, so many believers live a compromised lifestyle with sin. लेकिन कई लोग पाप के साथ समझौता करके जीवन जीते हैं, And because of which their soil is frozen. और उस कारण उनके जमीन ठंडे पड़ गए हैं। And because of sin, many other stones come along. और पाप के कारण वापस दिल में कई पत्थर आ जाते हैं, And there is no place for the seed to go. और बीज बोने के लिए जगह नहीं रहती, And therefore no harvest. और इसलिए फसल नहीं होती। The third and many other reasons, और तीसरा और बहुत कारण है, comparison, तुलना करना, jealousy, ईर्ष्या करना, strife, कलेश करना, materialism, और भौतिकवादी होना, and so many other stones that we put in our heart. और ऐसे इत्यादि कई सारे पत्थर हैं जो हम अपने दिल में डाल लेते हैं। Okay, but I have a question. लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। Did you show that image, guys? Can you show that image again? हम इस चित्र को देखें। Did you guys see this before? Okay, I didn't see it. Sorry. So if you remove all the top stones, अगर हम ऊपर जो पत्थर पड़े हुए हैं इसको हटा दें, and you have the good word, और अच्छा वचन जो है वो हमारे पास हो, how much time will it take for the harvest? कितना समय लगेगा फसल आने में? Say not 40 years. कहें 40 साल तो नहीं लगेंगे। Amen? Amen. I pray मैं ये प्रार्थना करता हूँ that the word you have been receiving from this pulpit कि जो वचन आप इस मंच से पाते हैं will start to yield fruit in your life. वो आपके जीवन में फल लाना शुरू करेगा। I decree और मैं इस बात का ऐलान करता हूँ that no offense कि कोई भी खेद will be able to hold you back anymore. कि
कि कोई भी खेद या कोई भी दोष आपको पीछे नहीं थामे रखेगा from bringing forth fruit in your life. फल लाने से आपके जीवन में। Amen? Amen. All right, I want you to say these things with me. और मैं चाहता हूँ आप ये घोषणाएं करें पहले And when you say this, keep जब- a hand on your heart. You'll need to tell your heart to do it. और जब आप ये घोषणाएं करें अपने दिल पर हाथ रख लें क्योंकि And say, आपको अपने दिल से कहना है I let go of every offense and bitterness. I am not the center of the universe. I am called to serve and not be served. I am delivered from sinful flesh. I have dominion over my body and all its desires. In Jesus' name. मैं हर एक दोष और कड़वाहट को जाने देता हूं। मैं ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हूं। मुझे सेवा करने के लिए बुलाया गया है और सेवा करवाने के लिए नहीं बुलाया। मैं पापी शरीर से छुड़ाया जा चुका हूं। मेरे शरीर और उसकी सभी लालसाओं पर प्रभुता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। All right, the third category now. अब जो तीसरी श्रेणी है, When do you let your circumstances rule over you? जब हम अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी देने Come on, just देते so we can be sensitive. Come on, stand in your place. हम Come on, we'll just all stand in our place. Come on. हम संवेदनशील हो जाएं इसलिए खड़े हो जाएं थोड़ी देर। Come on, for a minute we'll just pray in tongues. एक मिनट के लिए हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। Frakatala bahasha tamara karaba shete breshe ri brashatala brakatala rabahashe terebe re brashata namahasha tala brakatala brashetelere re beshete breke tele breshe tele breke te re bashata brakala hashata makaraba shebranta la brashate brakala brashata namanta le breshe ketele breheshe telebre ri brashata la brakana mante breshe te ketele breshe te le brakata la rahashe tele breshata namashata karaba la brahantoro shoto broko torobo re breshe tele breshe kete li brashata la brahante ne shala bara la bahashe teri arala le brahate ne shala bahate re brahante le beshe tele rehe se tala bahate. Oh, Karabashe. I decree and declare this day is the last day of your shame in the name of Jesus. I decree and declare every mocking of the enemy is destroyed from your life in the name of Jesus. I decree and declare that your family shall be called the house of the Lord. Your house shall be called the house of the Lord. The hand of the Lord will rest upon you and your generations, that whosoever will see you will surely know that the Lord is with you. Hallelujah. Hallelujah. You all can sit. आप बैठ सकते हैं. आप बैठ सकते हैं। So the third circumstance, the third thing when you do not let the seed bring forth fruit. और तीसरी बात, जब आप उस बीज को अनुमति नहीं देते अपने जीवन में फल लाने के लिए। When you let your circumstances rule over you. जब हम अपने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, You know, due to our family upbringing, चाहे वो हमारे जो जीवन में जिस तरह से हमें पाला बढ़ा गया है, our experiences, हमारे अनुभवों के कारण and other things. और दूसरी बातें, We've all been so trained हमें इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है to be ruled by certain things in life. कि हम अपने जीवन के कुछ बातों के द्वारा हावी किए जाएं, शासित किए जाएं, And we are so accustomed to those things और हम उनके इतने आदी हो जाते हैं that the moment the slightest knock comes, कि जब कोई खटखटाता है उन परिस्थितियों के बीच में, we quickly embrace those circumstances. हम उन परिस्थितियों को अपने गले से लगा लेते हैं। You know, thanks to Indian mothers, thank God for Indian mothers. और पिता का धन्यवाद हो भारतीय माताओं के They are लिए very loving, कि वो बहुत प्यार करती हैं, but they all have given us this gift of thanda garam. लेकिन उन्हें हमें ठंडा गरम की जो पुरस्कार है वो दी है।
You know? अभी एसी से निकल नहीं, बाहर से आ रहे हो, एसी मत ऑन करो, अभी रुको रुको, गर्मी से आ रहे हो, एसी मत ऑन He's करो. just come inside the house from आई एम the heat. स्वेटिंग लाइक अ पिग ममा, मैं बहुत ही सुअर की तरह पसीना पसीने में हूँ. मुझे बहुत पसीना आ रहा था. गरम ठंडा मत करो. Don't make it heat cold. अब टिल व्हेन कैन वी स्टॉप इट, राइट? लेकिन हम इसको कब तक रोक सकते हैं? अब गाड़ी में आ रहे हैं, वीर इन द कार एंड द एसी इज ऑन, हम गाड़ी में जा रहे हैं और एसी चल रहा है उसमें, एंड देन वी गेट आउट ऑफ द कार एंड इट्स 48 डिग्रीज इन दिल्ली. और जैसे बाहर निकले 48 डिग्री की हाउ फार टेम्परेचर कैन है. वी रन? हम कितनी दूर भाग सकते हैं इससे? एंड देन देयर इज अ, व्हेन यू रीच होम इन द इवनिंग, और जब शाम को घर पहुंचते हैं, देयर इज अ नॉक ऑन द डोर. एक खटखटाहट होती है दरवाजे पर. बदन टूट रहा है, आई एम नॉट फीलिंग टू वेल. ठंडा गर्म हुआ होगा तुम्हारे साथ आज. हीट कोल्ड ना हो तुम्हारे साथ आज. You know, we are so accustomed to these circumstances in life हम ऐसी स्थितियों को लेकर इतने आदी हो चुके हैं that until revelation victory comes in that area, कि जब तक प्रकाशन का जय नहीं आता उन क्षेत्रों में, we will not be set free easily. हम तब तक आज़ादी से चल नहीं पाएंगे. But the great thing is, लेकिन अच्छी बात यह है, our pastor brings the proceeding word, the revelation victory every week, week after week. कि हमारे पास्टर अंकित यहाँ पर वो जय वाला प्रकाशन लेकर आते हैं हफ्ते दर हफ्ते. And you can walk out of those circumstances you've been growing up with. आप उन परिस्थितियों से बाहर होकर चल सकते हो जिसके भीतर से आप पूरी जिंदगी में चलते आए हो. Okay, I decree मैं इस बात की ऐलान करता हूँ this is the last day of your allergy in the name of Jesus. कि आपके एलर्जी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में. That what you have not eaten in years, और जो आपने इतने सालों में खा नहीं पाए एलर्जी के कारण, you will eat for the years to come. आप आने वाले सालों में खाते रहोगे उसको यीशु मसीह के नाम में. And God will add pleasure in it. और परमेश्वर उसमें उसको और स्वादिष्ट करेगा. Amen. Amen? Amen. मुझे इतना मजा आ रहा है, I can't tell you the. Oh. I am loving it. Oof. I so love our pastor, man. He's such a wow. Okay, this is not a praise session. I'm sorry. I'm just being very honest, and I'm very vocal when I'm honest about some things. So please. मैं पास्टर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये कोई उनको स्तुति या उनकी प्रशंसा करने का सेशन नहीं है, लेकिन मैं उनको सच में दिल से बहुत चाहता हूँ. I pray you will encounter the spirit that is upon the man of God. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस अभिषेक को जो परमेश्वर के जन पर है आप उसका अनुभव करोगे. Then you will relate with me. तब आप समझ पाओगे कि मेरे दिल में क्या चल रहा है. Amen. So what are some of those circumstances? तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में? Financial worries. आर्थिक चिंता. महीने का आखिरी हफ्ता आ गया है. The last week has come of the मैगी ऑर्डर कर लो, मैगी. Let's order Maggie only. I pray मैं ये प्रार्थना करता हूँ that your days of eating Maggie in the last week कि आखिरी हफ्ते, महीने के आखिरी हफ्ते में मैगी खाने are के दिन over in the name of Jesus. खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम में. That you will eat the best of the land. कि हम जमीन का उत्तम भाग खाएंगे. That the Lord will satisfy you with the fat of the land. कि परमेश्वर जमीन का उत्तम भाग से आपको तृप्त करेगा. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में. You know, funny side joke. एक चुटकुला है. Sorry, Yash. When we were dating, जब मैं और याशिका डेटिंग पे थे, we were in Gurgaon somewhere in near a market. शादी से पहले की बात है, मैं और याशिका जो है गुड़गांव में एक मार्केट में थे. So Yashvika was trying to lose weight. तो उस समय पास्टर याशिका जो है वो वजन घटाने की कोशिश कर रही थी. For safety reasons, I will not mention anything about weight. For my safety. अपनी भलाई के लिए मैं वजन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा. And we went to this market and I bought flavored curd. I love flavored yogurt. और मैं मार्केट गया और मैंने वहाँ पर फ्लेवर्ड दही ली. मुझे वो बहुत पसंद है. So I came to Yashvika and I said, low fat. और मैंने कहा कम फैट वाला. She said, huh. And she ate. I said, the low was in Hindi. तो मैंने कहा लो जो वो हिंदी में था कि फैट लो, चर्बी लो. So the Lord is saying, तो प्रभु ये कहता है low fat.
God will feed you with the fat of the land. Amen. प्रभु कहता है कि उत्तम भाग या चर्बी लो, वो आपको उत्तम भाग से तृप्त करेगा। Amen. Health related worries. स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। You know, you hear a word here, आपने यहाँ से वचन सुना you will live and not die. कि मैं जीऊंगा और मरूंगा नहीं, You will proclaim the works of the Lord all the days of your life. कि मैं परमेश्वर के कामों की घोषणा करूंगा अपने सारे The जीवन Lord में, will satisfy you with a long life कि परमेश्वर एक लंबी आयु से हमें तृप्त करेगा and show you the fullness of His salvation. और अपनी उद्धार की संपूर्णता दिखाएगा। And then you go home और जब हम घर जाते हैं and you experience a symptom which your mom or your dad or somebody in the khandan experienced. और पीढ़ियों में, पुरानी पीढ़ियों में माँ या माता या पिता या किसी ने भी किसी सिम्टम का अनुभव किया था, And you take that seed और हम उस बीज को लेते हैं and you say, ये तो खानदानी है यार. और कहते हैं ये बीमारी तो खानदानी है, होगी ही। Will that bring fruit in your life? तो क्या वो ऐसा बोलने से हमारे जीवन में फल आएंगे? I pray that everything your generations have suffered, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो कुछ सहा है, you will not even remember. आप उसको याद भी नहीं रखेंगे, उसकी याद मिट जाएगी। Amen. Fear of the future भविष्य का भय and so many other worries. और बहुत ज़्यादा उदाहरण है My dad is not Ambani. कि मेरा पिता अंबानी नहीं है Nobody here's dad is Ambani. और यहाँ पे किसी का भी पापा अंबानी नहीं है। In case is you need Jesus. In case there is you need Jesus. और अगर है तो आपको यीशु की आवश्यकता है। But we have a God who is greater. लेकिन हमारा एक परमेश्वर है जो महान We have है। a Father who is greater. एक पिता है जो बहुत महान है। He says, I am. वो कहता है मैं हूँ, He who is outside of time. जो समय से परे है। Okay, imagine this is your age now. आप कल्पना करिए कि ये आपकी उम्र है, So this is you today. कि आप आज इस उम्र के हो This is you 10 years later. और 10 साल बाद आप ऐसे हो, You 20 years later. फिर 20 साल बाद, 30 years later. फिर 30 साल बाद, 40 years later. 40 साल So on, so forth. और आगे ऐसे बढ़ते रहें हर दशक। Today, आज के दिन He says, I am. वो कहता है मैं हूँ। 10 years later, He is I am. 10 साल भी बाद भी कहता है मैं हूँ। 20 years later, I am. 30 साल बाद भी कहता है मैं हूँ। So the future you will arrive into, तो जो भविष्य में आप प्रवेश करोगे, He is already there. वो पहले से ही वहाँ पर है मौजूद। Amen. Come on. So good. Come on. I don't know if it's the thundering of the Lord or the speaker system. मुझे नहीं मालूम कि ये परमेश्वर या स्पीकर सिस्टम की Yeah. गरज है। So the Lord is here, who is here today, is also here. You are right, you are still here. जो परमेश्वर हमारी उम्र की पहले स्थान हमारे में साथ मौजूद यहाँ है, right? हमारे साथ यहाँ पर है, वो You are still here, हम अभी भी यहीं पे हैं। you are still here, but the Lord is here and here and here and here and here. As long as you live, He is with you. Amen. मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब तक हम जिएंगे परमेश्वर हमारे संग है। So you are arriving into a future where He is. तो हम ऐसे भविष्य में प्रवेश करते हैं जहाँ वो पहले से ही मौजूद है। Amen. You know, we love our Indian moms, right? We come back home, there is food on the table. हम अपनी भारतीय माताओं से इतना प्यार करते हैं, जब हम घर वापस आते हैं खाना पहले से ही बना होता है। He is better than a mom. He is better than a mom. वो हमारी माँओं से भी बेहतर है। When you will arrive here after 10 years, जब हम 10 साल बाद इस स्थान पर आते हैं, खाना पहले से बना हुआ है. the food is already prepared and on the table. Amen. I pray मैं ये प्रार्थना करता हूँ that the provision of the Lord कि परमेश्वर की प्रधानता will overtake you आपके आगे चली जाएगी, even beyond what you can think, आपकी सोच से आगे चली जाएगी, beyond what you can spend, आपके खर्चों से आगे चली जाएगी, beyond what you can afford.
आप जितना संभाल सकते हैं उससे आगे चली That His जाएगी। provision will overtake you. उसकी जो प्रदानता है वो वो जो देता है उस आगे चली जाएगी, आपके ओवरटेक कर लेगी। Amen. Amen. And when you are here 10 years from now and you turn back, you will see goodness and mercy. Amen. Goodness and mercy. Come on. Goodness and mercy will follow you all the days of your life. और जीवन के हर एक पड़ाव में जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हम उसकी करुणा और भलाई को देखेंगे। यहाँ पर आएंगे तब भी करुणा और भलाई को देखेंगे, यहाँ पर हर एक पड़ाव पर हम करुणा और भलाई को अपने पीछे पीछे चलता हुआ देखेंगे। Amen. So good. You know, I want to share this with you. मैं आपसे ये बांटना चाहता हूँ, Just so you know, I'm also growing in my journey. ताकि आप ये जान जाएं कि मैं भी अपनी इस यात्रा में, यीशु मसीह की यात्रा में बढ़ रहा हूँ। Every year around the month of April, अप्रैल के महीने में I would develop a chest allergy. हर साल अप्रैल के महीने में एक चेस्ट की, छाती की एलर्जी मुझे आ जाती है या थी। And for many years, और कई सालों तक I did not know there was a way out. मुझे पता नहीं था कि इससे छुटकारा भी है। But I thank God for my pastor. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर का The preceding word that he brought to me, कि जो कार्य करने वाला वचन वो मेरे पास लेके आए। it dawned, the revelation light dawned on me one day. प्रकाशित जो वचन का प्रकाशन है वो मेरे ऊपर उभर कर आया That I don't have to do this. कि मुझे ये नहीं करना है, I can be free. मैं इस एलर्जी से आज़ाद जी सकता हूँ। Year on year, हर साल I have been progressing a step further मैं आगे बढ़ रहा हूँ and I'm proclaiming victory in that area. और मैं जय की घोषणा कर रहा हूँ उस एलर्जी के ऊपर। I pray whatever allergy has bothered you, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस किसी एलर्जी ने आपको तंग किया है अब तक, you will crush it under your feet. आप उसको अपने पैरों तले कुचल दोगे। Amen. Hallelujah. Praise God. What you cannot overcome through medication, जो आप दवाइयों के द्वारा इलाज नहीं कर पा रहे, you can overcome through meditation. आप उसको मनन करने के द्वारा जय पाओगे उस पर। Amen. And you don't need time for meditation. और आपको मनन करने के लिए समय की जरूरत नहीं है, Meditation happens here. क्योंकि मनन जो है वो दिल में चलता रहता है। When David was a king जब दाऊद राजा बन गया and executing his kingship in his kingdom, और जब वो अपना राजत्व कर रहा था अपने राज्य में, he says to the Lord, let my meditation be acceptable before you. वो प्रभु से कहता है कि मेरा मनन करना आपको ग्रहण योग्य हो। You're probably a little less busy than David. आप शायद दाऊद से थोड़ा कम व्यस्त होगे, Little less. थोड़ा सा, You can meditate. तो आप मनन तो कर सकते हो। Amen? Amen. So, All right. Say with me. आप मेरे साथ ये घोषणा करें, My reality is not determined by my experiences, my feelings, or my emotions. The Word of God is my reality. I am born of God. Therefore, I have overcome the world and everything that comes against me. God is faithful to me and my generations. I will not be afraid of anything. My future is filled with greatness. I am growing from glory to glory to glory. मेरे साथ दोहराएं, मेरी वास्तविकता मेरे अनुभवों, मेरी भावनाओं पर निर्धारित नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरी वास्तविकता है। मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने दुनिया को और मेरे खिलाफ आने वाली हर चीज पर विजय हासिल की है। परमेश्वर मेरे और मेरी पीढ़ियों के प्रति वफादार है। मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। मेरा भविष्य महानता से भरा है। मैं महिमा से महिमा की ओर बढ़ रहा हूं। यीशु मसीह के नाम। Amen. Amen.
All right, so we come to the fourth category now, अब हम चौथी श्रेणी में आते हैं, where the teaching that you receive brings proof. कि जो वचन आपने ग्रहण किया वो फल लाता है, सबूत लाता है। Sabut lata. Amen? Amen. It brings proof of what you heard. वो सबूत लाता है उस बात का कि आपने सुना है वास्तव में। You know, one day Ritvik was not well, एक दिन ऋत्विक की तबीयत खराब हो गई थी। and I saw and I said, "Oh, temperature हो रहा है इसको." मैंने देखा और मैंने कहा अरे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। And I asked Yashvika, "Should we take him to the doctor right now?" और मैंने याश्विका से कहा कि क्या हम इसको डॉक्टर के पास ले चलें? She looked at me और उन्होंने मेरी ओर देखा and she said, "Samarth, don't look at the snake bite, look at the brazen serpent." Amen. तो उन्होंने कहा कि सांप के कांटे को मत देखो, उस सांप को देखो जो लाठी पर लटका है। She was quoting that week's sermon to me. और वो उस हफ्ते का जो वचन है वो मुझे बता रही थी। I stood right here and interpreted that. मैं यहीं पर खड़े होकर उसका अनुवाद कर रहा था, But I didn't put it in my heart. लेकिन मैंने उसको अपने दिल में ना उतारा था। When I went back home, जब मैं घर गया, because she had labored in that word, क्योंकि उन्होंने उस वचन पर मेहनत की थी and she said it to me. और उन्होंने मुझसे कहा, Physically, I was still sitting there, मैं शारीरिक रूप में तो वहीं बैठा हुआ था, but inside, I got thrown away. लेकिन अंदर मैं एकदम मानो छटक के पीछे गिर गया हूं। When you work with the word, जब हम वचन के साथ कार्य करते हैं, you carry the same authority हम उसी अधिकार को लेकर चलते हैं as the one who released the word. उसी अधिकार को लेकर चलते हैं जो उसके पास था, जिसने वचन को बांटा या वचन You को know, घोषणा की। Jesus went to the synagogue. यीशु आराधनालय में गया, He opened the book of Isaiah, उसने यशाया की पुस्तक खोली started reading it, और उसने पढ़ना शुरू किया। and the people are like, "Who is this man? और लोगों ने कहा कौन है ये मनुष्य He is speaking the word with such authority." कि वो वचन को इतने अधिकार के साथ, इतने हियाव के साथ पढ़ रहा है। When you work with the word, जब हम वचन के साथ कार्य करते हैं your words carry authority over it. तो हमारे मुंह से निकले शब्द उसके ऊपर एक हियाव, एक अधिकार लेकर चलते हैं। Amen? Amen. All right, I want us to do some Bible reading, so just come on, wake yourself up, shake yourself up, it's okay. We'll do some Bible reading. We'll go to the book of James 1. अपने आप को झंझोलें क्योंकि हम कुछ बाइबल के आयत पढ़ने वाले हैं। याकूब उसका पहला We'll read verse 21. और 21वीं आयत। Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। When you meekly and humbly receive the word. Go back to the verse please. वापस जाएं उस When you meekly and humbly receive the word. जब हम पूरी मलिनता, जब हम पूरी नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करते हैं, As the now word, उसको अभी का, इस समय का वचन के समान, that word will preserve your generations. तो वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को संभाल के रखेगा। Let's read verse 22. हम 22वीं आयत पढ़ें। But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, क्योंकि जो सिर्फ सुनने वाले होते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। Is this book written to the church? क्या ये किताब कलीसिया के लिए लिखी गई थी? Believers are deceiving themselves. विश्वासी जन अपने आप को धोखा दे रहे हैं। They say, I have heard the faith series, वो कहते हैं कि मैंने विश्वास की श्रृंखला को सुन लिया है, but I have no proof of faith in my life. लेकिन विश्वास का मेरे जीवन में कोई But I सबूत have नहीं है। heard. लेकिन मैंने सुना है। No, you have not. तो आपने सुना नहीं है। Don't just fulfill your religious duty by coming and hearing Sunday word. एक धार्मिक काम ना कर लें कि मैं यहाँ पर आकर रविवार दर रविवार वचन सुन रहा हूँ। You don't get brownie points for attendance, आपको यहाँ आने के कोई पॉइंट्स नहीं मिलते, कोई विशेष अंक नहीं मिलते, but you get revelation लेकिन आपको प्रकाशन मिलता है and victory और जय मिलती है when you hear the preceding word. जब हम कार्य करने वाले वचन को सुनते हैं। Amen? Amen. So when you go home, तो जब हम घर जाएं आज, what to do then? तो हम क्या करें?
You work with the word. हम वचन के साथ कार्य करें, Sow it into your heart. अपने दिल में बोलें उसको, Water it. उस पर पानी डालें, Water it again. दोबारा पानी डालें। Amen. आमीन। You know, Galatians, Paul tells the Galatian church in Galatians 3:1, he says, "O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth?" और पौलुस गलातियों 3 उसके 1 में इस तरह से गलातियों की कलीसिया से कहता है कि हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है That you should not obey the truth. कि तुम अपने आंखों के सामने जो सत्य है, सत्य को ना मानो। Okay, सत्य को ना मानो, Not obey the truth. right? But they heard the truth. लेकिन उन्होंने सत्य को सुना तो, They heard, सत्य को सुना but they got deceived. लेकिन धोखा पाया। You come here and you hear a word on Sunday हम यहाँ आते हैं, रविवार को वचन सुनते हैं, is not the guarantee of fruit. वो गारंटी नहीं देता कि हमारे जीवन में फल आएंगे ही। When you go back home, जब हम घर जाते हैं, circumstances, things in life can still deceive you. परिस्थितियां, हमारे जीवन में होने वाली बातें फिर भी धोखा दे सकती हैं। So what to do? तो क्या करें? Say, work with the word. कहें वचन के साथ कार्य करो। See, there's a default setting in our phone, right? हमारे फोन में एक डिफॉल्ट सेटिंग रहती है। So let's say, okay, technical हो जाएगा. Let's say somebody's phone just keeps going back to default setting. थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तकनीकी हो जाएगा। मान लीजिए किसी का फोन बार बार डिफॉल्ट सेटिंग में अपने आप जा रहा है। So you change the wallpaper, you change the screen settings, everything. You put your apps wherever you want, and then when your phone restarts, default setting. आपने वॉलपेपर, आपने एप्स अपने तरीके से सेट कर दिए, लेकिन जब फोन रीस्टार्ट होता है तो वापस डिफॉल्ट हो जाता है। Either the word will renew you, या तो वचन आपको नया कर देगा, or the world will unrenew you. या फिर दुनिया आपको दोबारा पुराना कर देगा। If you work with the word, अगर हम वचन के साथ कार्य करें, it will renew you. वो आपको नया करेगा। Amen? आमीन। All right. Verse 23. Let's read. Quickly, come on. गलातियों 1 उसका 23। I'm trying to wrap up quickly, but it's the Spirit, so don't blame me. याकूब 1 का 23। For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like a man beholding his natural face in a mirror. और जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण या शीशे में देखता है। For he beholds himself क्योंकि वो अपने आप को देखता चला जाता and है goes his way और अपने रास्ते जाता है and straightway forgets और तुरंत भूल जाता है what manner of man he was. कि वो कैसा था। So you come to church, तो हम कलीसिया आते हैं Pastor Ankit brings a huge mirror of the word. और पास्टर अंकित एक बहुत बड़ा दर्पण लेकर आते हैं। He shows you who you are. वो दिखाते हैं कि आप वास्तविकता में कौन है। Oh, you are so surprised to look at yourself in the word. You look so amazing. और हम बौचक के रह जाते हैं कि अरे हम इतने सुंदर दिखते हैं वचन में। And then you go out और जब हम बाहर जाते हैं and you say, I'm an introvert, I'm depressed, I'm this, I'm that. और कहते हैं मैं तो ऐसा ही छोटा सा ही हूँ, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। Why? क्यों ऐसा होता है? Because you did not do the word you heard. क्योंकि हम उस वचन पर चले नहीं जो हमने सुना। Verse 25. 25 की आयत। But whosoever looks into the perfect law of liberty and say continueth therein. मेरे साथ हो, पढ़ रहे हो मेरा? Okay, let's read together. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein. Stop. मेरे साथ बोले, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, continueth therein. करता रहता है। Not that you came here and you saw the mirror, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर एक बार आए और आपने दर्पण देखा, but you took that mirror with you. लेकिन आपने वो दर्पण अपने साथ लिया। So on the way you're looking at the mirror. तो रास्ते में उस दर्पण को देखते हुए जा रहे हैं। You reached home and you're looking at the mirror. हम घर पहुंचे और हमने उस दर्पण को देखा। A situation arose but you're still looking at the mirror. परिस्थिति आई जीवन में, लेकिन फिर भी हम उस दर्पण को देख रहे हैं। You know what will happen? आप जानते हो क्या होगा? You will become what you behold.
आप वही बन जाओगे जो आप निरंतर देखते रहते हो. Come on. So good. Amen? Amen. And you will have fruit to show for it. और आपके पास फल होगा दिखाने के लिए. Then you can say, I have heard. तब this आप word. कह सकते हैं पूरे हियाव के साथ, मैंने सुना था. This is the proof. ये है सबूत. Amen. Amen? Amen. (26th verse and we'll end here. और 26वीं आयत, इसके बाद हम समाप्त करेंगे यहाँ. If any man among you कि यदि कोई अपने आप को seem to be religious भक्त समझता है and bridles not his tongue, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पाता है but deceives his own heart, और अपने हृदय को धोखा देता है, this man's religion is vain. उसकी भक्ति व्यर्थ है. So when you're looking at the mirror जब हम उस दर्पण को देखते हैं and somebody tells you और कोई आपसे कहता है you're depressed, कि आप डिप्रेस्ड हो, you're looking at the mirror all joyful, हम उस दर्पण में देखते हैं कि अरे मैं तो पूरा आनंदित हूँ, you will not revert to default setting. तो हम उस डिफॉल्ट सेटिंग या जो कहा गया है उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे. You will hold your tongue from saying, I am like this, I am like that, हम अपनी जीभ को थामे रखेंगे ये कहने से जो दुनिया वाले हमारे लिए कहते हैं, because you are beholding who you are. क्योंकि हम बार बार उसी दर्पण में देख रहे हैं जो हम वास्तविक में हैं. I decree and declare, तो मैं घोषणा और ऐलान करता हूँ every false image, कि हर एक झूठी पहचान, every false identity हर एक झूठी पहचान that you have accepted over yourself जो आपने ग्रहण किया है अपने जीवन में, falls apart today. आज रद्द कर दिया जाता है. I decree and declare मैं इस बात की घोषणा और that every ऐलान करता name हूँ that you have accepted कि हर एक नाम जो आपने ग्रहण किया है, that does not match the name that the word has given you जो उस नाम से मिलता जुलता नहीं है जो वचन ने दिया है, is permanently removed from your life. आज पूरे अस्थायी रूप से हटा दिया गया है आपके You जीवन shall से. no longer be called what you were called. आप आज से वो नहीं कहलाए जाओगे जो आपको पहले बुलाया जाता था. You shall be called what the Lord calls you. आप वो बुलाए जाओगे जो आपको परमेश्वर बोलता है कि तुम हो. Amen. Amen? Amen. All right, I want you to say this with me. I am a doer of the word. मेरे साथ कहिए कि मैं परमेश्वर के वचन पर चलने वाला हूँ. I richly sow the word in my heart and reap a great harvest in my life. मैं अपने हृदय में वचन को बहुतायत से बोता हूँ और अपने जीवन में बड़ी फसल काटता हूँ. Okay, you've made it this far with me. आप यहाँ तक मेरे संग संग चले आए. I've been talking about do the word, do the word, do the word. मैं बार बार ये कहता रहा कि वचन को कार्यशील करो या वचन पर चलो. Does anyone want to learn how to do the word? कोई सीखना चाहता है कि वचन पर कार्यशील कैसे होएं, Or you're just happy to know that we should do the word? या सिर्फ हम खुश हैं इस बात को जानने के लिए कि Okay, हमें okay. वचन करना है. I will hear it if I will believe it if I hear it. मैं तब मानूंगा जब मैं सुनूंगा. Do you want to hear? Do you want to know how to do the word? क्या आप जानना चाहते हो कि वचन को कार्यशील कैसे करना है? Yeah. See, let not your information realm grow bigger. मैं नहीं चाहता कि आपका जो जानकारी का जो स्तर है वो बढ़ता रहे, Let your revelation realm grow bigger. Amen. लेकिन आपके प्रकाशन का स्तर बढ़े. You know, it doesn't matter if you know who the president of whatever country is and where is what located, what is the capital of Japan. It doesn't matter. इस बात की परवाह नहीं कि आप ये जान लें कि किसी भी देश का राष्ट्रपति कौन है या फिर कोई भी अगुवा कौन है, कोई भी लीडर कौन है. ये सब फर्क नहीं पड़ता. That is all that mattered when we were in school. वो सब तब मायने रखता था जब हम स्कूल में थे. When was the last time you spoke to Ho Chi Minh? आप हो चिन मिन से लास्ट टाइम कब बात किया था आपने? When was the last time any of this mattered? इन बातों की किसको परवाह है कि लास्ट टाइम जो हुआ था, पिछली बार जो हुआ था. What you know is useless if you can't live it. आप जो जानकारी जानते हो वो बेकार है अगर आप उसको जी नहीं सकते तो. The word is designed to make you live it. लेकिन परमेश्वर का वचन इस तरह से बनाया गया है कि हम उसको जी सकें. Come on. So I'm going to give you 2 practical ways तो मैं आपको 2 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा how you can do the word. कि हम वचन को किस प्रकार से कार्यशील कर सकते हैं. Because when we tell you to do it, क्योंकि जब हम कहते हैं करने को simply और आसानी से, you say they want YouTube comments.
These guys want YouTube comments. That's why they're telling us to write a summary on it. तो जब हम आपको आसानी से करने को कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अरे इनको YouTube कमेंट्स चाहिए, इसलिए वो हमसे कहते हैं कि लिख लो भैया. We don't care less about a YouTube comment. हमें इस बात की परवाह नहीं कि आप YouTube कमेंट्स डाल रहे हो कि नहीं. We don't care. हमें सच में परवाह नहीं इस बात की. When you have to write the YouTube comment, लेकिन आपको जब YouTube के कमेंट्स लिखने हो, you have to sit and hear the teaching. आपको बैठकर टीचिंग को सुनना जरूरी है. Undistracted. और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. And you have to read your notes. और आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं. And then you have to see whether I've written it correctly, in the right order, in the right grammar, everything okay. और आपको ये देखना है कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, कि उसमें हर अक्षर, हर बिंदु सही जगह है कि नहीं. In the process, इस प्रक्रिया में you're doing the word. आप वचन को कर रहे हो. The word is going into your heart, वो वचन आपके दिल में जा रहा and है you don't even know it. और आपको पता भी नहीं. The Bible says the sower sowed the seed and slept at night and did not even know how it grew up. और वचन में लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोता है और आराम से सो जाता है और उसको पता भी नहीं कि रात में कैसे वो बीज जो है उग आया. I decree while you are making your summary, मैं ये घोषणा करता हूँ कि जब आप अपनी समरी बना रहे the हो, word will bring fruit in your life. वो वचन आपके जीवन में फल लाएगा. Amen. 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 So that's the first practical way. You make a summary of the weekly sermon. कि ये पहला तरीका है, पहली प्रक्रिया है कि हम जो सुना है हफ्ते का उसकी समरी, उसको संक्षिप्त में बनाएं. Don't write paragraphs. It's not essay writing competition. ये किसी निबंध लिखने की प्रतियोगिता नहीं है. बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ ना लिखिए, परंतु उसकी संक्षिप्त में लिख लीजिए. Don't write the filler things that Pastor Sam gave low fat yogurt to Yashvika. और जो बीच में चुटकुले होते हैं या बीच में हंसी मजाक वाली बातें होती हैं, उन सबको ना लिख लें. Even the fillers that we often use, which won't edify you. और कई बार जो हम बातें बोलते हैं, जो हंसी मजाक करते हैं, वो शायद आपको प्रोत्साहित ना करें. I'll give you an example. मैं एक उदाहरण देता हूँ. You went to a textile mill कि मान लीजिए आप कपड़ों के मिल में गए and you bought a whole bundle of a cloth. और आपने बहुत सारे कपड़ों का बंडल ले लिया, थान ले लिया आपने. Right? And you're carrying that home happily. और आप उस थान को घर ले जा रहे हैं खुशी खुशी. Put it and you look at it now. और उसको पहनकर देख रहे हैं. Is it of any use to you? क्या वो आपके किसी काम का है, वो थान को अपने ऊपर डाल के देखना? No, right? नहीं. Until जब तक tailor uncle will come. दर्जी आएगा, He'll say, बेटा सांस लो. कहेगा पेट अंदर करो. Take a Right? breath. And they take all the measurements and do all of that and do all the cutting and the sewing and the stitching and the sizing and whatever. और वो नाप लेकर, आकार लेकर आपका सिलाई गुनाई करेंगे. Then you get a very beautiful looking dress, और जब आपके shirt, पास pant, whatever out of it. एक सुंदर ड्रेस या शर्ट या पैंट तैयार हो जाएगी, Is that useful to you then? तब क्या वो आपके काम आएगी? This is what you do when you make a summary. तो जब आप संक्षिप्त बनाते हो हफ्ते के प्रकार का, आप ऐसा करते हो. Make sense? Amen. The Bible says, rightly dividing the word of truth. और परमेश्वर का वचन कहता है सही रीति से परमेश्वर के वचन का विभाजन करना, You need to cut it कि उसको काटें according to your size. अपने साइज के हिसाब से. See, Pastor Ankit पास्टर अंकित, has the faith to build this place उनके पास विश्वास है इस स्थान को बनाने का all by himself. अपने आप से. I can't take his size and make my clothes. मैं उनका साइज लेकर अपने कपड़े तो नहीं सिला सकता, I have to pick a fight with something my own size, right? और मुझे अपने साइज का कुछ बनाना पड़ेगा. Right? So I apply my faith in the things of my size. तो मेरे जीवन में जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए मैं विश्वास का लागू करता हूँ. And that's how I grow in life. और इस तरह से मैं जीवन जीता हूँ. Pastor Ram can lift a 20 kg dumbbell पास्टर राम जो है 20 किलो का डंबल उठा सकते हैं. with my both hands and I'll need Sumit's help to do it. मैं अपने दोनों हाथ और सुमित की मदद से ही उठा पाऊंगा. I can't do what he's doing. मैं वो नहीं कर सकता जो वो कर रहे हैं. I can do what I can do. मैं वही कर सकता हूँ जो मैं करता हूँ. So I tailor make the word for myself. तो मैं वचन को अपने लिए I put उसका my सारांश name बनाता into हूँ. my summary. मैं अपना नाम डाल लेता हूँ अपने I सारांश put में. my name into the things that apply to my life. मैं उन चीजों को जो मेरे जीवन पर लागू होते हैं उसमें अपना नाम डाल लेता हूँ. Okay? So we break it down into points. और हम उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में बिंदुओं में तोड़ देते हैं. We repeat reading over it, हम रिपीट करते दोहराते हैं. thinking over those points again and again.
बार बार उस पर विचार करते हैं, मनन करते हैं. When Ritvik has temperature, we let the pointers challenge us. और जैसे ऋत्विक को बुखार आया था, हमने उन पॉइंटर्स को, उन बिंदुओं को हमें चुनौती देने को अनुमति दी. Do not look at the snake bite, look at the brazen serpent. लेकिन हम उस सांप के काटे हुए घाव को ना देखें, परंतु उस सांप को देखें जो लाठी पर लटका हुआ है. When contradicting circumstances arise, choose to think according to what you learned. Don't go back to default settings. Amen. जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ये चुनाव करें कि जो सिखाया गया था उस पर मनन करें, ना कि वापस उन चीज़ों को देखें जो पहले से दुनिया में हो रही हैं. If I can make it simple for you, मैं आसान शब्दों में कहूँ तो make a summary of actions you can take. उन बातों का सारांश बनाओ कि मैं इस बात को सुनकर क्या क्या कर सकता हूँ. Amen? Amen. Does it make sense to you? क्या समझ में आ रही है ये बात? Make a summary of what you can do in life. इन बातों का सारांश बनाएं कि इस वचन को सुनकर मैं क्या अपने जीवन में कर सकता हूँ. Okay, second practical way. दूसरा प्रैक्टिकल तरीका, This is a shortcut, ये शॉर्टकट है and I'm not giving this to you so you can skip the first. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आप इसको चाहो तो अनसुना कर सकते हो. This is not, no. This is not for ignoring the first one. ओ माफ कीजिए, ये दूसरे को इग्नोर करने के लिए नहीं है, पहले को ignore पहले को करने के लिए. इग्नोर करने के लिए The नहीं है. first is important for you to flourish. पहला बहुत जरूरी है आपके जीवन में फलवंत होने के लिए. The second is important to keep you thinking और दूसरी बात जरूरी है कि आप उस पर सोचते रहें till the time you don't finish your summary. तब तक जब तक आप सारांश बना ना लें. Amen. Okay? Oftentimes when we go to a meeting कई बार ऐसा होता है कि हम एक मीटिंग में जाते हैं and I sit and I hear pastor, और मैं सुनकर पास्टर के वचन को सुनता हूँ. or if we both go and a senior man of God is speaking, और जब हम दोनों जाते हैं और एक सीनियर परमेश्वर के जन प्रचार कर रहे होते हैं, when we both come out, हम जब बाहर आते हैं, pastor always asks me this question. पास्टर हमेशा मुझसे ये सवाल पूछते हैं So Sam, what was the highlight of the meeting for you? कि सैम तुम्हारे लिए मीटिंग में विशेष बात क्या थी, मुख्य बात क्या थी जो उभर कर आई. That highlight वो जो is, उभर कर आती है बात, is the one that I'm taking back home to do. वो जो मुख्य बात उस मीटिंग से निकल कर आती है, वो मैं अपने साथ वापस ले जा रहा हूँ कि मैं घर जाकर करूँ. It makes sense? क्या समझ में आ रही है बात? So practically, तो प्रैक्टिकली when you're walking out, जब हम बाहर जा रहे हों, there must be something you know from today's sermon that you have to do. आज की संदेश से कुछ ना कुछ बात आपने पकड़ी होगी जो आपके लिए मुख्य होगी, जो आपको करना है, Which you must think about जिसको हमें सोचना है in your life. अपने जीवन में. And second और दूसरी बात, is you make a summary, make it a action list. जब हम सारांश बनाते हैं उसको एक कार्यशील करने वाली लिस्ट या सूची बनाएं. Amen. Everybody who's sleeping say hallelujah. आमेन. जो कोई सो रहा है कहीं हालेलुया. All right, come on, we'll just stand in our places. Amen. Come on. We'll just stand in our खड़े होके places. प्रभु Thank स्तुति you, करते हैं. Father. We glorify you, Jesus. धन्यवाद We give you पिता. glory, Jesus. हम आपको महिमा देते हैं यीशु. Holy Spirit, we thank you for the word. We thank you for your written word. पवित्र आत्मा धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके लिखित वचन के लिए. Thank you for the Spirit. धन्यवाद आत्मा के लिए. Thank you for Jesus, the cross, the crucifixion, the resurrection. धन्यवाद यीशु के लिए, क्रूस के लिए, उनके दफनाए जाने के लिए और पुनरुत्थान के लिए. We thank you for we are lifted together with Christ in the heavenly places, धन्यवाद पिता कि हम यीशु के साथ जिलाए गए हैं स्वर्गीय स्थानों में, where we have received every blessing in the heavenly realm, जहाँ हमने हर प्रकार की आत्मिक आशीष को पा लिया है, where we are complete in Christ, जहाँ हम संपूर्ण हैं यीशु मसीह में, where there is nothing missing, जहाँ कुछ भी कम नहीं है, nothing broken, कुछ भी टूटा नहीं है, nothing incomplete in our life. और कोई भी कमी नहीं है हमारे जीवन में. We glorify you, Jesus, हम यीशु आपके नाम की स्तुति करते for the हैं power of God is available for us क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है. in our circumstances. हमारे परिस्थितियों में The power of your word takes over. परमेश्वर का वचन का सामर्थ हमारे ऊपर हावी होता है. In our life situations, हमारे जीवन की परिस्थितियों में your word springs forward. आपका वचन हमें आगे लाता है. Your word jumps into our heart. आपका वचन हमारे दिल में उठता है.
delivering us out of every circumstance and situation. हर प्रकार की परिस्थिति से छुटकारा देता है। Holy Spirit, we thank you for the ministering of angels. पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों की सेवकाई के लिए धन्यवाद। We thank you right now, your angels are ministering to your saints. धन्यवाद कि आपके संतों की सेवकाई कर रहे हैं इस समय स्वर्गदूत, Lord, your angels hearken the word to perform it. और आपके स्वर्गदूत ठहरे हुए हैं उस वचन को करने के लिए। And Lord, right now we release the ministering angels to execute what your children have spoken today. और इस समय हम उन स्वर्गदूतों को बोलते हैं कि वो उस कार्य को करें जो बच्चों ने आपके बोला है। Every decree that is done over them, हर एक बात जो ऐलान की गई है उनके ऊपर, every declaration that they have made, हर घोषणा जो की गई है आज, so shall their life be. उनका जीवन वैसा ही हो, So shall their story be. उनकी कहानी वैसी ही हो। God, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में पिता, we call upon the mighty hand of the Lord हम परमेश्वर के महान भुजबल को बुलाते हैं to take your children out of every wilderness, every experience that does not line up with the word of God. उनके बच्चों को हर प्रकार की मरुभूमि, हर प्रकार के अनुभव जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, उससे बाहर निकालने के लिए बुलाते हैं। Every sickness ends today. हर एक बीमारी आज रद्द होती है, खत्म होती है। Every depression ends today. डिप्रेशन आज खत्म होता है। Every thought that torments ends today. हर एक चिंता, हर एक सताव जो आपको सताती रही है, आज खत्म होती है। This is the end of the 40 years journey and the beginning of the promised land for many. आज उस 40 साल की मरुभूमि की यात्रा की समाप्ति और वायदे की जमीन में प्रवेश का आज का दिन है। Lord, I decree and declare freedom. और आज हम घोषणा और ऐलान करते हैं आजादी की। Everyone who is bound, हर कोई जो बंधा हुआ है, be made free. आज आजाद हो। Be set free now. आज आजाद हो जाए यीशु के नाम में। Every report that is against them हर एक रिपोर्ट जो उनके खिलाफ है, stands cancelled now in Jesus' name. रद्द कर दी जाती है यीशु के नाम में आज ही। Every judgment that is against them हर एक न्याय जो खिलाफ किया गया है आपके, is turned into their favor now in Jesus' name. उनके फेवर में, उनके प्रति कर दिया गया है आज यीशु के नाम में। Every eye that is lifted against them हर एक आंख जो उनके खिलाफ उठी हुई है, is humbled now in the name of Jesus. नम्र कर दी जाती है यीशु मसीह के नाम में। Every plan of death that is against them मृत्यु की हर एक योजना जो उनके खिलाफ प्लान की गई है, is destroyed now in the name of Jesus. आज रद्द कर दी जाती है यीशु मसीह के नाम में। Every debt is paid now in Jesus' name. हर एक उधार आज माफ कर दिया जाता है, चुका दिया जाता है यीशु मसीह के नाम में। Every loan stands paid now in Jesus' name. हर एक लोन आज चुका दिया जाता है यीशु मसीह के नाम में। Lord, everyone that has come with a sickness here प्रभु, जो कोई बीमारी के साथ आया है, stands healed now in Jesus' name. आज चंगाई पाता है यीशु मसीह के नाम में। I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every sickness हर एक बीमारी पर and every disease. और हर एक रोग पर। I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every demon और हर एक दुष्ट आत्मा पर, and every evil spirit, हर एक दुष्ट आत्मा पर, every tormenting spirit, हर एक सताने वाली आत्मा पर, every dead spirit, हर एक मृत्यु की आत्मा पर, every spirit that is tormenting their household. और हर एक आत्मा पर जो उनके घर के लोग Right सता रही now. है इस समय In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में। I cast you out in the name of मैं Jesus. तुझे खदेड़ता हूँ यीशु मसीह I के set you नाम में। free now. आज मैं तुम्हें आजाद बोलता I हूँ। cast out every spirit and never to come back. मैं हर एक उस दुश्मन आत्मा को कहता हूँ कि बाहर जा और वापस मत आ, Never to return again. कभी मत वापस आ। This is the last day of your torment. आज तुम्हारे सताव का आखिरी दिन है This is the last day of your anguish. और आज तुम्हारी पीड़ा का आखिरी दिन है। This is the last day of your pain. आज तुम्हारे दर्द का आखिरी दिन है। That pain you will remember no more. उस दर्द को आज से तुम याद नहीं रखोगे। That torment you will remember no more. उस पीड़ा को तुम याद नहीं रखोगे। Your children will not partake in the suffering you have gone through. तुम्हारे बच्चे उन सताव, उन पीड़ा में शामिल नहीं होंगे जो तुम झेला है। Whatever you have suffered ends today. जो कुछ तुमने आज तक झेला है वो अब से खत्म हो जाता है। Your generation is made whole.
आपकी पीढ़ियां जो है संपूर्ण कर दी गई हैं। Your generations are made whole. आपके आने वाली पीढ़ियां संपूर्ण कर दी गई हैं। In the name of Jesus, come on, church, just यीशु open your मसीह के नाम mouth. में Open your mouth. कलीसिया मुंह Start खोले decreeing. और Decree अपने ऊपर life. घोषणा, Speak life. जीवन की Right घोषणा। now, decree life over yourself, over your family, over your house. In the name of Jesus. जीवन की घोषणा करना शुरू करें। Decree अपने life ऊपर, now अपने in the परिवार name के of ऊपर, अपने Jesus. बच्चों के ऊपर। You will live and not die. बोले, No हम plan जिएंगे of और death would मरेंगे prosper नहीं। against you. No कोई भी weapon मृत्यु- formed against you would prosper. Decree, 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 इस बात decree. की Speak घोषणा करें कि life. कोई भी Right now, शत्रु का decree हथियार life over मेरे और yourself. मेरे खिलाफ, परिवार के खिलाफ सफल नहीं होगा। घोषणा करें